जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय रमन। आज मैं उर्वशी आप सबके समक्ष महिलाओं के कुछ संदेश लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आखिर भारतीय दलित गर्भ महिला सम्मेलन का दूसरा सत्र 20 जुलाई 1942 को नागपुर के मोहन पार्क में विशेष रूप से बनाए पंडाल में शुरू हुआ था। इसमें 45,000 लोगों की हाजिरी थी, जिनमें से 25,000 के करीब तो महिलाएं ही थीं। इसको देखकर बाबा साहिब ने कहा कि सामाजिक बुराइयों को खत्म करने की दिशा में महिला ने महान सपोर्ट किया है। बाबा साहिब ने कहा कि मैं किसी समुदाय के प्रति इस आधार पर मानता हूँ कि उसकी महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। बाबा साहिब ने महिलाओं को संदेश देते हुए कहा, साफ रहना सीखिए, तमाम बुराइयों से दूर रहे, अपने बच्चों को शिक्षा दे, उनके दिमाग में ये बात बिठाइए कि वे महान बनने के लिए पैदा हुए हैं, उनके अंदर से सारी हीन भावनाएं निकाल दे। शादी की जल्दी ना करें, शादी एक जिम्मेदारी है। आपको इसे अपने बच्चे पर तब तक नहीं लादना चाहिए जब तक वह आर्थिक तौर से इस जिम्मेदारी को निभाने के काबिल ना हो जाए। जो लोग शादी करेंगे वे इस बात को ध्यान में रखेंगे, अधिक बच्चे होना अपराध है। माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे जैसी उन्हें खुद मिली थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लड़की शादी करती है वह अपने पति के साथ खड़ी हो, वह अपने पति और मित्र और बराबरी का दावा करे, वह उसकी गुलामी ना करे। मुझे विश्वास है कि अगर आप इस सलाह पर चलेंगे तो आप अपना और दलित गर्भ का मान सम्मान और गौरव बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। मेरा नाम आरती शर्मा है। मैं श्री साईं पब्लिक स्कूल से हूँ। आज मैं आपको बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए कुछ बताना चाहती हूँ। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज यानी 6 दिसंबर को पुण्यतिथि मनाई जाती है। अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू के एक गांव में हुआ था। बाबा साहेब का बचपन आर्थिक और सामाजिक भेदभाव के बीच गुजरा। जब वह स्कूल में थे तो उन्हें छुआछूत और जाति पाति का भेदभाव झेलना पड़ा। हालांकि विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए अंबेडकर ने अपनी शिक्षा को पूरा किया और काबिलियत व मेहनत के बल पर 32 डिग्री हासिल की। उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल हुई। I will give speech on Dr. Bhimrao Ambedkar ji. Dr. Ambedkar Mahaparinirvan Divas is observed on every 6th December as the death anniversary of Bharat Ratna Baba Sahib Bhimrao Ambedkar. Baba Sahib throughout his life progressively worked for the rights of the untouchables and other marginalized sections of the society. He was instrumental in fighting for the social recognition, electoral rights of the untouchables. Baba Sahib was also the main brain behind the drafting of the Constitution of India. After his death on 6th December 1952, he was cremated at Chaitanya Bhumi in Mumbai, Maharashtra. Thank you. Jai Bhim, Jai Bharat. Death anniversary of Dr. B.R. Ambedkar, the architect of our Indian Constitution. He was a tireless champion of social justice and equality, fighting against the evils of caste discrimination. Dr. Baba Sahib Ambedkar's vision for a just and equal society continues to inspire us today. Let us remember his teachings and strive to create a better future for all. On this Mahaparinirvan Divas, let us dedicate ourselves to his ideals. May we work towards a nation where everyone is treated with dignity and respect. Thank you. Jai Hind, Jai Bhim, Jai Bharat. Based on ethics, rational throughout law, natural, religious, decorum, equality, fairness, and the government of the law. Taking into the account of human beings and citizens and inborn rights as well as the right of individual to
equally protection as well before. Liberty. Liberty is the right enjoyed by everyone, individual to act the way he or she desires. We can use the alternative term freedom use of liberty. Liberty is proudly classified into two ideologies. Positive ideologies means that a person can make decisions freely in the broad aspect of society. I would like to end my speech with the slogan, Constitution is not a mere lawyer document, it is a vehicle of life, it is the spirit, always remains spirit of age. Thank you, have a nice day. साथियों, आप सब जानते हैं कि आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। आज बहू फोर्ट में स्कूल के बच्चे यहाँ पर आए थे। उन्होंने बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण दिवस पर यहाँ पर जो बात की है और इस प्रोग्राम पर जो श्यामलाल बसंत जी और उनके साथियों ने इस प्रोग्राम को जो ऑर्गेनाइज किया था उस पर बात कर लेते हैं। अभी नोट रखें आप, 22 जनवरी 2024 अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम होगा, जिसको बीजेपी वाले बहुत जोरों शोर से चला रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा क्या है? वो मूर्ति वहां पर स्थापन होगी, उस पत्थर की मूर्ति में वो आत्मा डालेंगे। पत्थर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा में वो आत्मा डालेंगे। अरे आप हमें ये बताओ, जो आत्मा में आत्मा डालने वाले लोग हैं, अगर उनमें वो ताकत होती तो उनके बुजुर्ग जो मर गए हैं, डेड बॉडीज थी, उनके अंदर वो प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं की उन्होंने? वो जिंदा होते। अगर प्राण प्रतिष्ठा में कोई ताकत होगी तो इस दुनिया में सारे बुजुर्ग अभी हमारे साथ होते और यहाँ पर पाँव रखने के लिए जगह ना होती। तो अगर आप इंसान, मरे हुए इंसान के अंदर वो आत्मा नहीं डाल सकते, तो पत्थरों के अंदर आप आत्मा डालते हो, तो हमारे लोग वहां जाएंगे? प्राण प्रतिष्ठा के लिए आपको प्रेज करना होगा, आपको जो अंधविश्वास है उससे दूर रहना होगा, तब जाकर बात होगी। दूसरी बात मैं खास करना चाहता हूं किसी अंधविश्वास पर। हम लोग जगह जगह पर जाते हैं सिर्फ इसलिए स्पिरिचुअलिज्म के नाम पर कि हमें स्वर्ग मिले, यही बात है। और क्या बात है? स्वर्ग हासिल करने के लिए हम स्पिरिचुअलिज्म को अडॉप्ट करते हैं कि इस मरने के बाद हमें कोई स्वर्ग मिलेगा। एक बात तो साफ है कि इनके सिस्टम के मुताबिक आपको स्वर्ग मरने के बाद मिलेगा, पहले नहीं मिलेगा। और मरने के बाद स्वर्ग कौन जाता है वो कोई नहीं बताता। जीता जा नहीं सकता, मरा हुआ बता नहीं सकता, ये अंधविश्वास है। तो इसको आपने, ये अंधविश्वास से आपको दूर रहना है। मैंने 2-4 लाइनें लिखी हैं, वो भी आप सुने। मैंने क्या लिखा है, गुरु की डेफिनेशन है, उसको आपने देखना है। मैं मैथ पढ़ाता हूं, 2 मिनट के लिए एग्जांपल देता हूं। मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। जो स्टूडेंट मेरे पास आता है मैं उसको मैथ सिखाता हूं। जो मेरे पास है मैं बच्चे को सिखाता हूं, और जो मेरे पास है वो बच्चे के अंदर पूरे ट्रेन जाते हैं, और फिर ये बच्चा भी पूरा ट्रेन होकर फिर आगे दूसरों को मैथ पढ़ाता है। मैं इस बच्चे के लिए गुरु हूं। जब मैंने कोई चीज देखी नहीं, उसके लिए मैं कहता हूं स्पिरिचुअलिज्म है कि मैंने गॉड को देखा नहीं और मैं गॉड को गुरु बनकर दूसरों के अंदर उसको अंदर इंस्टिल कर रहा हूं। ये बात कहां तक सही हो सकती है? प्रोफेशनलिज्म में गुरुइज्म है, लेकिन स्पिरिचुअलिज्म में गुरुइज्म जो है वो धोखाधड़ी है, उसमें कुछ नहीं है। उस पर मैंने 2 लफ्ज लिखे हैं कि जो लोग स्वर्ग के चक्कर में इधर उधर भटक रहे हैं, उनके लिए मैं कहूँगा, हो सकता है किसी को अच्छा ना लगे, मेरे पर्सनल ये व्यूज हैं। अगर पर्सनल व्यूज आपको अच्छे लगते ले जाना, नहीं तो इधर छोड़कर चले जाना। 6 दिसंबर जैसे पूर्व वक्ताओं ने जहाँ कहा, हर वर्ष की भांति यहाँ पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हमारे बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है। जैसे कहा गया कि वो दलितों के नेता नहीं थे, सच बात है, वो पूरी मानवता के थे। मानवता के लिए उन्होंने काम किया, तभी उनको महामानव कहा गया। आज जो जिस पोजीशन पर हम हैं, हमारी वेशभूषा, हमारे कारोबार, काम धाम जो भी है, वो बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब ना होते हमारी क्या दिशा होती, ये एक विचारणीय चीज़ है। और अज्ञानता की वजह से हम लोग
कहीं इकट्ठे नहीं हो पाए, वो हमारी कमजोरी है। लेकिन जहाँ पर बच्चों की जो प्रस्तुतियाँ देकर लगा कि जो हम नहीं कर सके, ये हमारी अगली जो नस्ल है, हमारा जो आगे परिवार है, ये पूरी करेंगे। बाबा साहेब की जो सोच थी, जो विचार थे, उन्हें न्यू जनरेशन के पास कैसे ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि बड़ी कमी है इन चीज़ों की, बड़ा कम पता है बच्चों को। वो आपने देखा होगा यहाँ आज जी, कि हमारे यहाँ के रविदास सभा के जो मैनेजमेंट कमेटी है यहाँ की, और शिकोत्रा साहब हैं, उनके साथ बसंत साहब हैं, जो हमेशा यहाँ पे ऐसे कार्य करते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हम लोगों तक जो बातें लोगों को नहीं पता है, जैसे मैंने अभी पहले बोलते हुए भी कहा कि हम सब लोगों को कुछ बातें ऐसी हैं कि लोगों ने हमें पता ही नहीं चलने दी। और ये जो हमारा संविधान है, जो बड़ी मेहनत से बना था, जो सारी दुनिया से भी जो ऊपर है, तो उसके लिए वो हमारे जो जिन लोगों को इसकी ज़रूरत थी, जिनको लिए कुछ यहाँ रखा गया था कि इनको ऊपर हटाना है, तो वो इनके हाथों तक पहुँचा नहीं। और वो नहीं पहुँचने की वजह ये हुई कि जो बाकी लोग थे, उन्होंने इससे पूरा अपना जो फ़ायदा लेने थे, जो भी काम थे, वो उन्होंने ले लिए। अब वो लोग नहीं चाहते हैं कि जो बाकी लोग हैं उनको भी पूरा फ़ायदा मिले और वो भी ऊपर उठे। तो मैं उनसे भी ये दरख्वास्त ही कहूँगा, मैं ये उनसे भी कहना चाहता हूँ, भैया अगर आप उठ गए हो, तो अगर सब देश को इकट्ठा रखना चाहते हो, देश को एक मिलाना चाहते हो, तो उनका भी हाथ और पकड़ के ऊपर उठाओ। ये जो लोग तुमने षड्यंत्र रचा रखे हैं कि किसी को ऊपर नहीं जाने देते हो, उससे काम होने वाला तो नहीं है। आखिर एक दिन तो कोई ना कोई पहुँचेगा ऊपर। एक कारण क्या मानते हैं कि कोई पखंडी बाबा हो, उसे सारी दुनिया जान लेती है, लेकिन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान निर्माता हैं, जिन्होंने इंसान को इंसान बनाया, जिन्होंने लोगों को जीने का रास्ता दिखाया, जानवर से इंसान की पदवी इंसान को दी, उनका प्रचार इतना कम क्यों हुआ, लोगों में नॉलेज इतनी कम क्यों पहुंची? देखिए, उसका मैं एक ही वजह समझता हूँ कि जिन लोगों को ये जो उस वक्त जो जात पात थी, तो वो बीच में से उठे, मतलब कीचड़ से उठ के ऊपर तक गए और सारी दुनिया को उनकी बात को मारना पड़ा। तो उन लोगों को गवारा नहीं होता कि बाकी लोग भी उसकी तरह आगे बढ़े हैं, उनको ये गवारा नहीं होता कि सभी लोग वहाँ पहुँचे, है ना। और बाबा साहब नहीं होने चाहिए। हाँ, इसलिए वो कहते हैं कि एक तो हो गए, बाकी लोग नहीं होने चाहिए, है ना। मतलब एक अम्बेडकर इतनी परेशानी उन लोगों के लिए बन गया कि कोई अगर एक और अम्बेडकर आ गया तो कितनी परेशानी। नहीं, परेशानी तो नहीं बना, ये सोचते थे। ये उनकी सोच जो गलत है, परेशानी तो किसी के लिए नहीं हुई, उन्होंने तो सबके लिए काम किया। वो ये सोचते हैं। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने सिर्फ एक वर्ग के लिए सिर्फ इन्होंने उसको एक नुक्ता बना के रख दिया है। जो संविधान है वो तो सब पूरे हिंदुस्तान की पूरी मानवता के लिए है, वो किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं है ना, वो तो सबके लिए है। लेकिन अब इन्होंने इसलिए कि ये छोटी जात से थे, इसलिए उसके ऊपर ये घड़ी उसके ऊपर वो उंगली करते हैं। बाकी मैं ये भी समझता हूँ कि सारे लोग ऐसे नहीं हैं, बहुत से लोग कुछ ऐसे भी हैं जो उनको मानते हैं और उनको चलते हैं, लेकिन सब लोग नहीं। कुछ लोग शैतान होते हैं, जो 50 लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीच में ऐसे हल्ला गुल्ला कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि परमात्मा ईश्वर अगर है तो उनको अकल दे कि भाई सब लोग इंसान है, इंसानों की तरह रहो और हम सब इकट्ठे मिलके इस देश की उन्नति के लिए काम करें, ना कि झगड़े लड़ाई करने में अपना वक्त जाया करें, लोगों को नुकसान पहुंचाने में करें। तो हम लोगों को चाहिए कि हम सब लोग इकट्ठे हुए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब भाई भाई हैं, तो हम सब लोगों को एकजुट होकर आगे बढ़ना है और इस देश को आगे ले जाना है। सामलाल बचन जी हमारे साथ हैं। सर, आज महापरिनिर्वाण दिवस है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का। इस दिन पर यहाँ पर स्कूल के बच्चे आए थे, उन बच्चों ने बाबा साहेब पर चर्चा की है और आपने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करवाया है। किस तरीके के प्रयास चल रहे हैं कि लोगों तक कॉन्स्टिट्यूशन की और बाबा साहेब की जिन लोगों को नहीं पता है उन पर चर्चा और उन लोगों तक जानकारी पहुँचाने के प्रयास? आज मैं पहले RTI का इंडिया न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ। आज का जो महापरिनिर्वाण मनाने का जो मकसद है, पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में उसका एक मकसद है कि ये मैसेज
कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया, इस देश के लिए क्या किया, हमारे लिए क्या किया, दबे कुचले लोगों के लिए क्या किया, उसके ऊपर लोगों तक ये मैसेज जाए, उसका ये मेन मकसद रहता है। क्योंकि बाबा साहब की अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें, उनकी सब कथा की बात में पढ़ रहा था कि सब कथा उन्होंने कहा मुझे तो इतना टाइम ही नहीं मिला। धनंजय कीर ने हालांकि प्रयास किया है उनकी इस वक्त लिखने का, लेकिन पूरा नहीं लिख पाए हैं। अगर बाबा साहब ने कहा तो मेरे पास इतना टाइम ही कहाँ कि मैं अपनी पूरी कहानी लिखूँ। बहुत बड़ी कहानी है जी, मेरे जीवन की बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ा एक लंबा संघर्ष है, वो इतनी जल्दी नहीं लिख पाऊँगा, ना ही तरह मुझे टाइम मिलेगा। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आज देश की नारी, खास करके नारियों के वो मुक्तिदाता रहे हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जो हिंदू कोड बिल था, चाहे उनके टाइम में तब नहीं हुआ, उसके बाद में पीस मिल में हुआ, लेकिन वो पास हुआ, तो आज बच्चियों का अधिकार, नारियों का अधिकार जो है हिंदू कोड बिल के तहत मिले। अब उन्हें जब उन्होंने बिल पेश किया था, आचार्य कृपलानी की उनकी मिसेज, सिर्फ उसने सपोर्ट किया था, बाकी बहुत ही लोग बाकी वालों सभी ने उसे अपोज किया था। और बाबा साहब को बहुत बड़ा जो धक्का इस बात का लगा था, वो एज ए लॉ मिनिस्टर उन्होंने ठोकर मार दी थी कुर्सी को, क्योंकि वो जानते थे हिंदू कोड बिल के तहत इस देश के अंदर रिफॉर्म आएगा, और आया भी। आज हम देखते हैं हमारी बच्चियां डीएम बन रही हैं, पीएम बन रही हैं, सीएम बन रही हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन रही हैं। ये संविधान की ही देन है, ये बाबा साहब की देन है। आज बड़े बड़े आप देखेंगे, बड़े बड़े जो बाबा बने फिरे थे, आज जेल के पीछे, सलाखों के पीछे हैं, संविधान के कारण है। आज संविधान उनकी भी रक्षा करता है, जो संविधान का विरोध कर रहे हैं, जो संविधान को खत्म कर रहे हैं, उनकी भी रक्षा संविधान, यही संविधान करता है। तो आज अगर हम चीज़ है बसंत साहब, ये चीज़ हो रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन और बाबा साहेब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसमें सभी धर्मों की, सभी जातियों के लोगों को इख्तियार दिए, अधिकार दिए, उनके हक दिए। लेकिन आज भी बाबा साहेब को दलितों के नेता और दलितों के ही लीडर माना जाता है, ऐसी चर्चाएं की जाती हैं। देखो, ये बहुत बड़ी विडंबना रही है इस देश की। वरना अगर हम संविधान की बात करें, अगर हम बाबा साहब को करें कि वो दलितों के ही लीडर थे, ऐसे ओबीसी के लीडर थे, तो बहुत बड़ी बेईमानी होगी। क्योंकि पूरे देश के वो लीडर थे और उन्होंने साबित करके दिखाया। कोई ऐसा तबका जात नहीं जिसके लिए उन्होंने काम नहीं किया, हर तबका जात के लिए उन्होंने काम किया। वो बात दूसरी है, अगर मैं आज बात करूं, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि अगर गुर्जर 72 गुर्जर मर गए 4% रिजर्वेशन के लिए, इसी तरह मराठा मर गए, इसी तरह मतलब जाट मर गए, लेकिन उनको आरक्षण नहीं मिला। लेकिन जब बात करते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, किसी ने ना आवाज़ उठाई और 4 दिन के अंदर वो पास हो गया। वे राज को मंडल कमीशन को 32 साल लगे इम्प्लीमेंट होने, 32 साल लगे। वे जब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करें, 4 दिन में पास हो गया। आप अंदाजा लगाइए कि हम किस ओर जा रहे हैं। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो राइट्स हैं उनकी धज्जी नहीं उड़ाई जा रही हैं? आज हम बात करते हैं, अभी बात चल रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पर असेंबली में बिल पेश करें, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 10% के लिए करेंगे। मैं चाहूँगा कि वाई नॉट फॉर 27, 27% के लिए क्यों नहीं? क्या अड़चन है इस? अब जेके ड्यूटी के अंदर क्या अड़चन है? पहले बहाना लगाया था 317, अब तो 370 भी नहीं है, 35 भी नहीं है। लिहाजा अभी 27% चाहिए, उसी के साथ कंटेनमेंट होगी। एक तरफ तो 27 जाते थे, उसके 15 और ग्रुप डाल दिए, 42 हो गए। और रिजर्वेशन हमारी वही 10%, 4 से 10 करेंगे, ये कोई सफिशिएंट नहीं है। हमें 27% चाहिए, उसी के साथ मतलब कंटेनमेंट होगी। लेकिन आज के दिन के बहुत बड़ा मैसेज ये है कि उन्होंने चाहे मजदूरों की बात करें, उनके लिए लाभ बनाए, 14 घंटे से 8 घंटे का काम किया। हम किसानों की बात करें, किसानों के लिए जो कर्जदार जो मतलब रहते थे, रसूखदार लोग रहते थे, सूद दे के बेचारे कर जो हमारे किसान हैं, और आज भी वो चीज़ आज भी मतलब रसा चले, सुसाइड मतलब कर रहे हैं। एक तरफ हम 25 लाख करोड़ के करीब माफ़ करते हैं जो बड़े बड़े रईस हैं, और दूसरी ओर हम किसान हमारे सुसाइड कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि हम जा किस हो रहे हैं। मेन जो हमारा आज का, एक तो हमारा, जैसे मैं नारियों की बात करूं,
ਭੀਮ ਰਾਓ ਨੇ ਜਗ ਜਨਨੀ ਦਾ ਐਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਬਣਾਇਆ। ये कहा ही नहीं, बाबा साहब ने करके दिखाया। आज नारी जाति का जो सम्मान बढ़ाया है वो बाबा साहब की देन है। वरना इन शास्त्रों की बात करें या लोगों की बात करें, ये तो बच्चों के हाथ में कलम देने को तैयार ही नहीं थे। क्यों तैयार हैं? उसकी वजह, बहुत बड़ी वजह ये थी, जो भी पढ़ेगा, एजुकेशन मतलब हासिल करेगा, वो क्वेश्चन करेगा, वो सवाल करेगा, क्योंकि जो सवाल पैदा करती है जो एजुकेशन है वो चाहते नहीं। आप प्रोफेसर शिवगोत्रा जी हैं। प्रोफेसर साहब, आज महापरिनिर्वाण दिवस है बाबा साहेब का। आज ही के दिन बाबा साहेब ने इस दुनिया को अलविदा कहा था, बहुजनों को जो हक दिलवाए थे, और पूरी मानव जाति की महिलाओं को भारतवर्ष में हक दिलवाने वाले बाबा साहेब का आज महापरिनिर्वाण दिवस है। स्कूल के बच्चे आए हुए थे, चर्चा हुई है, और आप क्या देख रहे हैं कि अब मुश्किलातें क्या हैं? बाबा साहेब तो नहीं हैं, और लगता भी नहीं कि कोई बाबा साहेब जैसा बुद्धिजीवी अब समाज को मिलेगा, तो किन मुश्किलातों का सामना होगा? ऐसा है कि बाबा साहब का कंपैरिजन आज तक कोई नहीं है, ना ही हो पाएगा, क्योंकि जिस लेवल का इंटेलेक्ट, जिस लेवल की इन्वॉल्वमेंट और कंसर्न उनका अपने समाज के प्रति था, ऐसे लोगों का दोबारा मिलना समाज के लिए बहुत मुश्किल बात है। आज का जो दिन हमने यहाँ सेलिब्रेट किया, बहुत सारे बच्चों ने अपनी बात रखी, उसके पीछे हमारी एक फ़िलॉसफी ये है कि हम बच्चों को बाबा साहब अम्बेडकर का जो लिटरेचर है या जो उनका जो मैसेज है, हम इन बच्चों को एम्बेसडर बनाकर बाबा साहब की आइडियोलॉजी, बाबा साहब की फ़िलॉसफी को लेके वो बच्चे आगे निकलें और समाज को जागृत करें। आज का पहला हमारा टारगेट ये था। दूसरा टारगेट जो मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने एजुकेशन के ऊपर फोकस दी। बाबा साहब की जो एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो डिग्रीज़ और सर्टिफिकेट के साथ नहीं था। वो ये चाहते थे कि मेरा एजुकेशन का मतलब कि लोगों को अपनी पहचान हो, सराउंडिंग की पहचान हो, लोग अपने आप को समझें, फिर हालात को समझें और फिर अपना फैसला लें। लेकिन हमने क्या किया कि बाबा साहब की एजुकेशन हमने उसको स्कूल एजुकेशन के साथ जोड़ दिया, और वो एजुकेशन जिसकी बात उन्होंने कही, जागृति की बात कही, उनका एजुकेशन का मतलब अवेयरनेस के साथ था। उनका एजुकेशन का मतलब अपने आप को जानने का था। उनका एजुकेशन का मतलब कि आप सोसाइटी को जानें और ये जानें कि आपका दुश्मन कौन है। लेकिन स्कूली शिक्षा भी तो अब छीन ली गई है, इतनी महंगी कर दी गई है कॉलेजों की, यूनिवर्सिटीज़ की। उसके पीछे क्लियर सा है कि एजुकेशन से आंखें खुलेंगी, और जब आंखें खुलेंगी वो देखेगा अन्याय कहाँ हो रहा है, न्याय कहाँ हो रहा है, उसके बीच में वो फ़र्क समझने की कोशिश करेगा, फिर वो डिमांड करेगा। इसलिए एजुकेशन को महंगा इसलिए कर दिया, पहली बात तो प्राइवेटाइज कर दिया एजुकेशन को, और महंगा कर दिया ताकि हर आदमी की अप्रोच में एजुकेशन ना आए और इनकी आंखें जो हैं वो बंद ही रहें। यही एक मेन था, क्योंकि आंखें खुलेंगी, ये देखेंगे और डिस्क्रिमिनेशन कहाँ हो रही है उसकी पहचान करेंगे, और उसके लिए ये आंदोलन भी कर सकते हैं और बाहर भी आ सकते हैं अपने राइट्स के लिए। मतलब सरकार, ये आप कहना चाह रहे हैं कि जो मौजूदा सरकारें वो चाहती हैं कि मंदबुद्धि बच्चे पैदा हों, बुद्धिजीवी लोग पैदा ना हों, वो सवाल ना करें, वो सवाल ना पूछें, वो अपने हक की बात ना करें। बिल्कुल सही बात कही आपने। जितनी देर तक रीजनिंग और लॉजिक जितनी देर तक बच्चे की डेवलप नहीं होगी, बच्चे के अंदर इंक्वायरी का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, वो अपना रास्ता नहीं ढूंढ पाएगा। और इंक्वायरी के लिए, रीजनिंग के लिए क्वालिटी एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। और क्वालिटी एजुकेशन अगर इस समाज को नहीं मिलेगी, उनकी आपने मंदबुद्धि की बात कही, मैं उसको स्लो लर्नर की बात कहूँगा, मैं उसको सेमी ब्लाइंड की बात कहूँगा। वो सेमी ब्लाइंड रहेंगे और वो अपने राइट के लिए, अपने विज़न के लिए, अपनी लीडरशिप के लिए, अपने उत्थान के लिए वो काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एजुकेशन को क्वालिटेटिव बनाने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो गवर्नमेंट स्कूलों का जो स्तर है उसको इम्प्रूव करें। गवर्नमेंट स्कूलों में
क्वालिफाइड टीचर्स लगाए और जिन स्कूलों में टीचर्स की कमी है वहाँ नीड बेस्ड स्कूल जो वो टीचर्स वो दिए जाएं, ताकि एक बहुत बड़े सिस्टम को हम एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन ले आए। और बाबा साहब का वही सपना था, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजुटेट। अब जब ये एजुकेट होंगे तब ये ऑर्गेनाइज भी होंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे भी। जय भीम। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके RTI इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें, ताकि RTI इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके।